कीजिए आप लोग, है ना? अभी भी आप लोग मेरे ख्याल से यू शुड कैरी अ पेन एंड पेपर विद यू. So without further ado, let us start. So is my screen visible to you? Yes, Yes, sir. sir. Can you see this question second? Okay. Yes, sir. So this is another type of question in the same series of this WSM method, designing of a simply supported rectangular beam, right? So we are designing what beam. तो देखिए अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन किस तरीके का हो सकता है. देखिए a rectangular beam of size 300 by 650 mm already given, size is already given, is subjected to a UDL is uniformly distributed load of 15 kilonewton per meter. So this is your load is given here. Okay, in the last question there was no loading given over a simply supported span of 5.6 meters. See, the span of the beam is also given, it is 5.6 meters. And load excluding self weight. So here it is clearly mentioned that load, there is no self weight taken in this load. Okay. So that means we will be considering this self weight also. So you have to calculate the stress developed in concrete and steel, right? So what are the stresses developed in concrete and steel? स्ट्रेसेस मतलब कि जो CA&TA था ना, जो एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप थे वो निकालना है हम लोगों को. ठीक है. M is modular ratio which is already given 15, and AST, area of steel, is given here 4 numbers of 20 mm dia bars. तो 4 बार है 20 mm dia की. Effective cover it is given 50 mm, right? So let's see the solution. Okay, so this was given. This is a rectangular beam section, right? 4 reinforcement है 20 mm dia की. ठीक है. This is your neutral axis. This was your depth, that was 650. तो 50 का कवर है तो 600 हो जाएगा. D will be effective depth will be 600. So this will be small d, right? So your small d will be 600. And this is your width 300, right? So first we'll find this distance, that is the actual depth of neutral axis. Actual depth क्या होगी? फॉर्मूला आपको पता है एक्चुअल डेप्थ कैसे निकालते थे? इक्वेटिंग द मूवमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ द साइड्स ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. तो इसका भी एरिया इनटू दैट डिस्टेंस CG से लेके यहाँ तक न्यूट्रल एक्सिस तक का. अब मैं ये ज्यादा बताऊंगा नहीं, आप लोगों को पता है कि ये फॉर्मूला कैसे मिला आपको. ठीक है. सो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे? यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो यू हैव ऑल द थिंग्स. बी आपको पता है, एक्स से आपको निकालना है ऑलरेडी. M15 गिवन था. एरिया ऑफ स्टील कैसे निकाल सकते हैं? 4 नंबर ऑफ 20 mm डाया बार्स लिखा था ना यहाँ पर, 4 नंबर ऑफ 20 mm डाया, तो 4 इंटू 5/4 इंटू d स्क्वायर. ठीक है. दिस विल गिव यू द होल एरिया ऑफ स्टील. D minus XA, and your XA after solving this equation will be 218.85. ठीक है. ये आपका एक्चुअल डेप्थ आ गई. ठीक है. तो आपको ध्यान रखना एक्चुअल डेप्थ इज 218.85. सिंपली निकाल लिया आपने. नाउ सेकंड थिंग इज लोड. अब लोड आप लोगों को पता है कि लाइव लोड आपको गिवन था 15 किलोन्यूटन पर मीटर. किलोन्यूटन पर मीटर, दैट मींस इट्स UDL, राइट? ठीक है. तो यूनिट पे भी आपको ध्यान देना है. नाउ ऊपर क्वेश्चन में लिखा था द वेट ऑफ द बीम इज एक्सक्लूडिंग द सेल्फ वेट, राइट? तो इसमें क्या होगा? ये तो लाइव लोड हो गया हमारा, डेड लोड और सेल्फ वेट क्या होगा? सेल्फ वेट मतलब कि बीम का जो खुद का वेट. ठीक है. अब इसको कैसे निकाला जाता है? इसको निकालने का तरीका होता है, सी, दिस इज योर डायमेंशन ऑफ द बीम, रेक्टेंगुलर बीम. तो कितना था? 300 बाई 650 mm था. ठीक है. यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ लेनी है आपको. तो 300 mm था. देख लीजिए यहाँ पर, आपको मैं दिखा देता हूँ once more. See, this was your overall width and this is your overall depth. ठीक है. 650 into 300. तो ये हो गया इसका एरिया.
यू कैन सी है। तो 300 इसकी विड्थ हो गई, मतलब 0.30 लिया मीटर्स में कन्वर्ट किया एमएम को, ठीक है। तो 300 mm इज 0.3 मीटर्स, ठीक है। एंड 0.65 meters again is the depth into one is for the length we have taken 1 meter, ठीक है, 1 meter span के लिए लिया हुआ है हमने। और 25 क्या होता है, 25 is the unit weight of concrete, ठीक है। 25 is nothing but unit weight of concrete, so that is in kilonewton per meter cube, ठीक है। So this is basically force per unit volume also. So this is unit weight of concrete. It is taken मतलब ये reinforced concrete के लिए, ठीक है। 25 अगर plain concrete होता है तो 24 लेना होता है आपको। So it is reinforced concrete, so you will have to multiply by 25. So this will give you 4.875 kilonewton per meter. Now you have your live load and your self weight, that is your dead load. तो इनको आप total कर लेंगे, कितना आएगा, 15 plus 4 is 19.875 total load आपको मिल गया, ठीक है। Now next is बेंडिंग मोमेंट, यू विल हैव टू फाइंड कि कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, WL²/8। सिंपल, आप W की वैल्यू पुट कर दो, W इज नथिंग बट दिस 19.875 L स्क्वायर, दैट इज लेंथ वाज गिवन 5.6 मीटर्स, ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 8। सो दिस विल गिव यू 77.91 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। इट इज बेंडिंग मोमेंट, सो इट विल बी इन किलो न्यूटन मीटर। सो यूनिट आल्सो यू हैव टू check all the time. Now our ultimate aim was to find the stresses, right? So how can we find the stresses? We can find stresses by equating bending moment to moment of resistance. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट को जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसकी इक्वल रख ले रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी हमारा मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है बीम की, वही हमारा बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम कंप्रेशन साइड आपको फॉर्मूला पता है बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, B into x is CA/2 D minus XA/3. Already you know this formula. Bending moment, और this is like moment of resistance हमने निकाला था from compression side, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट को हमने मोमेंट ऑफ कंप्रेशन, बेंडिंग मोमेंट को हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की इक्वली रख लिया कि हम ये मान के चल रहे हैं कि यही जो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वही हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की इक्वल रख लिया। सो अगेन बेंडिंग मोमेंट आपने पहले निकाल लिया था, दैट वाज 77.11 जितना भी आ रहा था आपका ऊपर, ठीक है। इक्वल्स टू बी आपको पता है, एक्स ए आपने पहले निकाल लिया, एक्चुअल डेप्थ, सी ए आपको निकालना है, मतलब एक्चुअल, दिस इज योर एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट, सी मतलब कंक्रीट के लिए था ना, तो ठीक है, ये आपको ऑलरेडी निकालना था। डी आपको पता है, इफेक्टिव डेप्थ, एक्स ए पता है आपको। तो इफ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट सी ए इक्वल्स टू 4.503 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो सी ए कितना आया, 4.503 आया, मतलब एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट 4.5 आया। और अगर इसी चीज को आप अगर टेंशन साइड से करना चाहें, अगेन यू कैन डू दैट, बेंडिंग मोमेंट को वाला फॉर्मूला लगा दें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। और इसमें से आप टी ए निकाल लें, फ्रॉम टेंशन साइड से अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, टी ए इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स ए बाई 3। सो अगेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन। बेंडिंग मोमेंट आपको पता है, एरिया ऑफ स्टील अगेन 4 इंटू पाई बाई 4 20 स्क्वायर by 4d square d minus xa, simple equations, okay. So you'll get, what you're getting is ta is this value 117.60। तो ये दोनों चीजें मिल गई आपको। आपको एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट निकालना था और एक्चुअल स्ट्रेस इन डेवलप्ड इन द स्टील निकालना था, तो दोनों चीज पता चल गई, सी ए भी निकल गया, टी ए भी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बट एक और तरीका आपको निकालने को मैंने आपको बताया था, सिमिलर ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी है ना, सो आप ये भी यूज कर सकते हो। वैसे आपका आंसर आ गया है बट आप चेक कर सकते हो। सो ये सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद होगी। तो सी ए आपने निकाल लिया, अगर ऊपर 4 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो टी ए सिंपल इस इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हो। तो टी ए विल बी लाइक दिस, सी ए डी माइनस एक्स ए इधर चला जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको पता है ऑलरेडी। See, it is coming, TA is coming, मतलब actual stress in the steel is coming 117.63 Newton per mm square, which is the same as above, ठीक है, 117.6। तो आप ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जस्ट चेक करने के लिए बताता हूँ। So this is how you will find the actual stresses. कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में?
ठीक है। तो इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? पिछले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था, जिसके लिए आपको एक्चुअल डेप्थ पता करनी थी और क्रिटिकल डेप्थ पता करनी थी वगैरह वगैरह, उससे आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालता। इस क्वेश्चन में आपको लोड गिवन था, ठीक है। इसमें आपको लोड गिवन था और उसके हिसाब से आपको स्ट्रेस निकालना था कि आपका कितना स्ट्रेस कंक्रीट में आएगा और कितना स्ट्रेस स्टील में आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपने पता लगा लिया स्टील में कितना स्ट्रेस आ रहा है 117.60 और कंक्रीट में कितना आ रहा था 4.5 समथिंग, ठीक है। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, स्ट्रेस विल बी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फाइन, आई होप इसमें कोई इश्यू नहीं होगा आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें अगेन आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप का सिनेरियो गिवन है। सी, इसमें आपको क्या क्या गिवन है? रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम, ये तो पता ही है रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है। साइज 350 बाई 700 mm, मतलब ये 350 विड्थ और 700 ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है। दिस इज नॉट इफेक्टिव डेप्थ, दिस इज योर ओवरऑल डेप्थ। तो अगर मुझे इफेक्टिव डेप्थ निकालनी होगी तो व्हाट विल आई डू? आई विल जस्ट क्लास आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है क्या? यस सर। यस। ठीक है, मेरे उसमें डिस्प्ले से चला गया था, नो इश्यूज। सो दिस इज योर रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम ऑफ साइज 350 बाई 700 mm। अगर आपको इफेक्टिव डेप्थ निकालनी है, आपको क्या करना है? कवर माइनस कर देना है। कवर हम जनरली बीम के लिए कितना लेते हैं? 50 mm। तो इफेक्टिव डेप्थ विल बी योर 700 माइनस 50, दैट इज योर 650, ठीक है। इज टू बी डिजाइन फॉर अ बेंडिंग मूवमेंट ऑफ, अब देखिए इसने दो कंडीशन दे रखी है, डिजाइन फॉर अ बेंडिंग मूवमेंट ऑफ, मतलब ये बता रहा है आपको, ऑलरेडी बता रहा है कि कंक्रीट की बीम में कितना बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है। ये कह रहा है कि पहली बार में आया 100 किलोन्यूटन मीटर, और दूसरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें आपका बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 200 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये अलग तरीके का क्वेश्चन, पहले वाले में लोड गिवन था, इससे पहले वाले में, इस वाले में बेंडिंग मोमेंट गिवन है आपको, ठीक है। तो दो कंडीशन के लिए आपको चेक करना है, फर्स्ट इज 100 किलोमीटर, सेकंड इज 200 किलोमीटर। देखते हैं कैसे होगा ये चीज, ठीक है। What will be the steel required for above bending moments? तो क्वेश्चन ये है कि above इन बेंडिंग मूवमेंट्स के लिए what will be the steel requirement? स्टील रिक्वायरमेंट मतलब एरिया ऑफ स्टील निकालना बेसिकली से, ठीक है। एएसटी आपको निकालना है कि कितना स्टील लगेगा इसमें, ठीक है। तो आप बेसिकली आपको यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्टील हियर, और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है दैट M20 कंक्रीट का मिक्स है एंड Fe415 स्टील इज यूज्ड, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। व्हाट विल बी द स्टील रिक्वायरमेंट फॉर बैलेंस सेक्शन? अभी आपसे पूछ रहा है कि बैलेंस सेक्शन के लिए भी आप निकालिए कि स्टील की रिक्वायरमेंट, स्टील रिक्वायरमेंट का जिस मतलब ये है कि एरिया ऑफ स्टील आपको निकालना है, दैट इज इट, ठीक है। एएसटी आपको फाइंड आउट करना है, तो एएसटी आपको पीछे फॉर्मूले से पता चल जाएगा कैसे निकालना है। बट उससे पहले एक इशू है हमारे पास, ठीक है। वो इशू ये है कि हमें अभी ये नहीं पता कि ये ओवर इन्फोर्स बीम है, अंडर इन्फोर्स बीम है, किस तरह की बीम है। सो फर्स्ट विल हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तभी हम कंडीशंस लगा पाएंगे और तभी हम एरिया ऑफ स्टील निकाल पाएंगे। So let us see how to solve this type of problem. See, here is the solution. Okay. So moment of resistance of a balanced section. So first of all, what we are doing, we are finding the moment of resistance of a balanced section. ठीक है। अभी हमें पता नहीं कि over enforced है, under enforced है, तो हम अभी कुछ कर नहीं सकते बिकॉज हमारे पास आइडिया नहीं है अभी बिल्कुल, ठीक है। तो हम किससे शुरुआत कर रहे हैं? We are taking the moment of resistance of a balance section, जो भी बैलेंस सेक्शन का कितना moment of resistance आता है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अभी आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो बैलेंस सेक्शन में आपको सारी कंडीशंस पता थी, राइट। तो अभी देख लो, यहाँ पर ये बीम का एक सेक्शन है, ये डेप्थ विड्थ है। सो इफेक्टिव डेप्थ आप निकाल सकते हो 700 माइनस 50 इज 650, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी जब हमने डिजाइन शुरू किया था कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बैलेंस सेक्शन क्या होता था? QBD स्क्वायर, याद है? QBD स्क्वायर, बहुत सिंपल मैंने बताया था, ओनली फॉर बैलेंस सेक्शन, राइट। सो इट इज QBD स्क्वायर, ठीक है। और Q क्या होता था? Q वाज हाफ CJK, ठीक है, हाफ CJK था। ये चीज आपको अब ध्यान में आ जाएंगी, मतलब याद रहनी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको किस चीज की वैल्यू ध्यान में रखनी है? C तो आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि कंक्रीट कौन सा गिवन था? M20 गिवन था, आई गेस, हाँ M20 गिवन था, तो C विल बी 7, आपको ऑलरेडी पता होगा। बट आपको J और K निकालना है, ठीक है। तो K क्या होता था? C, ये फिर से मैं रिवाइंड नहीं करूंगा, जल्दी से आप लोग इसको ध्यान में आ जाएगा आपको। K इक्वल्स टू MC अपॉन T प्लस MC, ये हमने पहले निकाला था, और J इक्वल्स टू 1 माइनस K/3। सो एवरीथिंग इज नोन। M आप निकाल लोगे, M20 के लिए M कितना होता है? 13 होता है, 280/3 सिग्मा CBC से आप निकाल सकते हो,
है ना, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। सी दैट इज योर स्ट्रेस कितना होता है M20 में 7, T will be 230 because this is a balance section, so we are taking maximum permissible stresses. Okay, तो स्टील में Fe415 के लिए हम 230 यूज करते हैं। उसी तरीके से अगेन M is 13 and C is 7, तो आप इसको निकालोगे, दिस इज कमिंग 0.28। ठीक है, J की वैल्यू भी निकालो 1 minus K/3 एंड व्हाट इज K? K we have already found here, ठीक है 0.28, तो यहाँ पर K को सब्स्टिट्यूट कर दो 0.28/3, तो दिस विल बी 0.94। इससे आपका Q निकल आएगा, Q निकल गया हाफ CJ के, C is 7, J अगेन यहाँ पर और K यहाँ पर वैल्यू है, अब ये पुट करो 0.89 आ गया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बैलेंस सेक्शन कितना आ गया? Moment of resistance of a balance section will be like this। ठीक है, Q की वैल्यू पुट कर दो 0.898, यहाँ पर लिखी हुई है देखिए 0.898 into 350 is the width into d square, d is again the effective depth। देखिए आप इफेक्टिव डेप्थ का कितना यूज हो रहा है, ओवरऑल डेप्थ का बहुत कम यूज होता है। ठीक है, हर जगह मेनली आपका स्मॉल डी का यूज हो रहा है। और ये मूवमेंट है तो मैंने बताया था मूवमेंट को आपको किलो न्यूटन मीटर में चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि सारी डायमेंशन मीटर MM में थी, तो आपको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/10⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस विल गिव यू 132.79 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये 10⁶ से करने का मतलब क्या था कि एक तो न्यूटन को आपने किलो न्यूटन में कर दिया और दूसरा MM को आपने मीटर में कर दिया। सो दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग बाय 10⁻³ into 10⁻³ दैट इज 10⁶। ठीक है, अब पहला केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास क्या था, डिजाइन फॉर द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ 100 किलो न्यूटन मीटर। सेकंड वाला था 200 के लिए। ठीक है, तो पहले 100 से करके देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, अब इसने बता दिया आपको कि 100 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट है बीम पे। सी बेंडिंग मोमेंट क्या था, बेंडिंग मोमेंट मैंने आपको बताया था जो लोड की वजह से मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, कोई भी लोड एक्ट कर रहा है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज योर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या था, मैक्सिमम मूवमेंट जो बीम झेल सकती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हो कि ओवर इन्फोर्स्ड है कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन है, अगर आपका बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, लेस देन मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है। सिंपल, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपने ऊपर निकाल लिया बैलेंस सेक्शन का, दैट इज 132। ठीक है, अगर बेंडिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम है, देखिए यहाँ बेंडिंग मूवमेंट कितना 100 है और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 132 है। ठीक है, ऑफ अ सिंगली बैलेंस सेक्शन, सो वी नीड एन अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो ये हमें कौन सी जरूरत पड़ेगी, अंडर रेनफोर्स सेक्शन की पड़ेगी। क्यों, अब आप इसको बहुत सिंपल एक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए MRE दिस इज योर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि इतना मूवमेंट बीम झेल सकती है, मैक्सिमम कितना झेल सकती है, 132 झेल सकती है। ठीक है, और उसको अभी झेलना कितना है, बेंडिंग मूवमेंट 100 का झेलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम लोग इसमें अंडर रेनफोर्स सेक्शन लगाएंगे, बिकॉज 100 का इसको 100 किलोन्यूटन का बेंडिंग मूवमेंट इसको बेयर करना है। ठीक है, तो ये इट इज अ अंडर रेनफोर्स सेक्शन, आपको रेनफोर्समेंट ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, आप अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पता लगा लेना, बेंडिंग मूवमेंट अगर कम आए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, बेंडिंग मूवमेंट को मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की इक्वल रखना है, अगेन जैसे पहले कर रहे थे। तो बेंडिंग मूवमेंट इज 100 into 10⁶ इक्वल्स टू B into XA CA/2, मतलब ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की इक्वेशन है फ्रॉम द कंप्रेशन साइड, सिंपल। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन अगर आप टेंशन साइड से देखोगे तो इट विल बी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू TA into AST D minus XA/3, सिंपल। बट आपको नेक्स्ट चीज जो ध्यान में रखनी है, दैट इज योर कंडीशन फॉर अंडर रेनफोर्स सेक्शन। सो व्हाट वाज द कंडीशन फॉर अंडर रेनफोर्स सेक्शन, तो आपको ये ध्यान होगा। ठीक है, CA वाज लेस देन सिग्मा CBC। अंडर रेनफोर्समेंट में क्या होता है, रेनफोर्समेंट अंडर है मतलब रेनफोर्समेंट कम है, तो पहले फेलियर किसका होगा, रेनफोर्समेंट का होगा। तो पहले अपने मैक्सिमम परमिसिबल पे कौन पहुंचेगी, रेनफोर्समेंट, तो TA विल बी इक्वल टू सिग्मा ST। बट कॉन्क्रीट अपने मैक्सिमम पे नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो आप जब भी अगर आप CA की वैल्यू निकाल के भी देखोगे इसमें आगे, तो सिग्मा CBC कितना हमारा M20 के लिए 7 होता है, तो आप देखेंगे कि CA की वैल्यू 7 से कम ही आएगी। ठीक है, वो आप आगे चल के देख भी सकते हैं। सो हम लोग इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। सो बेंडिंग मोमेंट वाज 100 into 10⁶ इक्वल्स टू TA की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, बिकॉज TA इज नोन, सो TA इज सिग्मा ST यहाँ पुट कर दिया, एरिया ऑफ स्टील सेम रहेगा, D minus XA/3, D इज दिस वन। सो फ्रॉम
दिस विल बी वन इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें दो अननोन है, एरिया ऑफ स्टील आपको नहीं पता जो कि आपको अल्टीमेटली निकालना है, और एक्स ए आपको नहीं पता, ठीक है। ठीक है, तो एक्स ए निकालने का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का फॉर्मूला क्या था एक्स ए, वो आपको पता है, बाय इक्वेटिंग मूवमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ द साइड ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो आप देख लीजिए एक्स ए अगर आप निकाल लेते हैं तो आप एरिया ऑफ स्टील निकल आएगा, आपको बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन एक्स ए निकाल लीजिए इससे, ये सेम फॉर्मूला है, इक्वेटिंग मूवमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ द साइड ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, अगेन फर्स्ट फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला यही था, दिस वन। सो बी इज गिवन, एक्स ए आपको निकालना है बाई 2 इक्वल्स टू M13 होगा फॉर M20। सो एरिया ऑफ स्टील नोन नहीं है, 650 माइनस एक्स ए, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सो आपको बेसिकली एरिया ऑफ स्टील के टर्म्स में आप इसको निकाल लें, तो दिस विल बी like solving this equation will give you this result, right? So here too, there again for finding the area of steel, there is this XA is unknown, right? Yeah. But आपके पास अब दो इक्वेशन हो गई और दो अननोन है, सो यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन इजीली। एरिया ऑफ स्टील इसमें भी है और XA इसमें भी है, इसमें भी एरिया ऑफ स्टील है और इसमें XA है। तो you what you can do, you can just substitute the value of area of steel in this equation, यहाँ पर इसमें पुट कर लो तो XA आपका निकल आएगा, ठीक है। तो यही करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग एरिया ऑफ स्टील इन इक्वेशन 3। तो ये एरिया ऑफ स्टील आप ऊपर पुट कर लो 10 to the power 100 × 10 to the power 6, देखिए यहाँ पर सेम, यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं एरिया ऑफ स्टील को, ठीक है। सो 2 into 230 into this area into 650 minus XA/3, सेम हियर, सी सेम वही चीज है इससे। तो अब मेरे पास एक ही अननोन है, दैट इज XA। सो XA वैल्यू विल बी इज कमिंग लाइक दिस 162.5 mm, राइट। तो एरिया ऑफ स्टील फिर आसानी से मैं निकाल लूंगा, बिकॉज एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला क्या था, ये आया था मेरा, एरिया ऑफ स्टील इक्वल्स टू 13.46 XA स्क्वायर अपॉन 650 माइनस XA। तो यहाँ पे XA की वैल्यू जैसी मुझे पता लगेगी, आई विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ XA हियर एंड आई विल गेट एरिया ऑफ स्टील। तो मेरा एरिया ऑफ स्टील कितना लग रहा है, 729.08 mm स्क्वायर। कब, जब मैंने 100 किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट के लिए सॉल्व किया था, ठीक है, व्हेन बेंडिंग मोमेंट वाज 100 किलो न्यूटन मीटर। तो एरिया ऑफ स्टील कितना है, 729.08 mm स्क्वायर, ठीक है। आप ये इसमें देख सकते हैं। अब सेम चीज आपको करनी है 200 के लिए, ठीक है। 200 किलो न्यूटन के लिए कितना एरिया ऑफ स्टील आता है, तो ऑफकोर्स बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, तो एरिया ऑफ स्टील मेरे ख्याल से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट, अभी देख लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये एक शॉर्ट फॉर्मूला और है, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। अगर आपको सिंपली इफ यू हैव टू फाइंड दिस थिंग, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला है, तो बी बेंडिंग मोमेंट अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, ये हमने पहले भी देखा था एक बार। तो बैलेंस सेक्शन के लिए एक्स इक्वल टू एक्स ही होता है, ठीक है, 0.2835 इतना समथिंग। और इसमें आप क्या कर सकते हो, बेंडिंग मोमेंट रख सकते हो, सिग्मा एस टी आपको पता होगा, जे आपको पता होगा, डी आपको पता होगा। इससे भी आपका 739 के अराउंड आ रहा है, इसमें देखिए यहाँ 729 आ रहा है, ठीक है। सो यू कैन यूज अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑल्सो, डायरेक्टली इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, बट दिस फॉर्मूला इज जनरली यूज फॉर स्लैब्स, नॉट फॉर बीम, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज योर, अब इसको देखिए, अब आपको खुद से ध्यान में रखना है, ठीक है, कि कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। सो वेरी इजी, बेंडिंग मोमेंट कितना है, 200 किलो न्यूटन मीटर है, और जो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था वो कितना था, आई थिंक 112 के अराउंड था, कितना था, लेट मी चेक। जो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा था, दैट वाज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन वाज 132, ओके 132 है। और अब हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, 200 किलो न्यूटन मीटर। सो दिस वाज अराउंड 132 मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। Right, so it is around 132 point something kilonewton meter. So you can clearly see that moment of resistance यहाँ पर बीम कितना झेल सकती है, 132 किलो न्यूटन मीटर झेल सकती है टोटल, बट यहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है, 200। लोड की वजह से कितना मूवमेंट आया, 200, मतलब जितनी उसकी क्षमता थी बीम की, उससे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट है यहाँ, ठीक है। इस टाइप के सेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हेन बेंडिंग मोमेंट इज मोर देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, विल हैव टू डिजाइन अ
इन दिस केस वी नीड अ ओवर इन्फो सेक्शन, ठीक है। हम पिछले वाला केस था अंडर इन्फो सेक्शन, ये है ओवर इन्फो सेक्शन। अब देखिए इसमें मैंने एक और चीज लिखी है, इन दिस केस वी नीड अ डबली रेनफोर्स सेक्शन। अभी हम लोग सिंगली रेनफोर्स सेक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिंगली रेनफोर्स क्या होता था, ये है आपको सिंगली रेनफोर्स जिसमें एक साइड पे सिर्फ टेंशन साइड पे रेनफोर्समेंट थी। डबली रेनफोर्समेंट में क्या होता है, ऊपर भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी इसके बाद हम देखेंगे इस टाइप की बीम जहां पर होंगी उसको बोलेंगे डबली रेनफोर्स बीम, वो दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो अब आपको एक थोड़ा क्लियर आइडिया आ गया है कि डबली रेनफोर्स बीम हमें कब यूज करनी है, व्हेन बेंडिंग मूवमेंट किसको एक्सीड कर जाए, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, मतलब जितनी बीम की क्षमता है झेलने की उससे ज्यादा का लोड की वजह से बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है। देखिए क्षमता कितने की है, 132 की, और बीम में लोड कितना आ रहा है, मतलब मूवमेंट कितना आ रहा है, 200, तो बीम तो फेल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है ऐसी बीम के लिए, वी नीड अ ओवर रेनफोर्स सेक्शन और अ डबली रेनफोर्स सेक्शन। तो डबली रेनफोर्स फिलहाल हमने अभी पढ़ा नहीं है, वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा। सो अभी हम इसको ओवर रेनफोर्स सेक्शन की तरह डिजाइन करते हैं, ठीक है। सो यू नो द कंडीशन फॉर ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स्ड है तो रेनफोर्समेंट ज्यादा है, मतलब पहले फेलियर किसका होगा, कंक्रीट का, मतलब कंक्रीट विल रीच इट्स मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस एंड स्टील विल नॉट रीच इट्स मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन, तो ये कम रहेगा, और ये अभी आप तक आप क्लियर हो गया, ठीक है। अगेन सेम प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो। क्या प्रोसीजर था, बेंडिंग मोमेंट को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल रखिए, ठीक है। कंप्रेशन साइड का फॉर्मूला रखिए, बिकॉज कंप्रेशन साइड का इसलिए रखा हूं बिकॉज मुझे सी ए की वैल्यू ऑलरेडी पता है। सी ए की वैल्यू होती है सिग्मा सी बी सी, बिकॉज इट इज अ ओवर इन्फो सेक्शन, सो आई ऑलरेडी नो सी ए, सो आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला। बी आपको पता है, एक्स ए आपको नहीं पता है इस वाले केस में, अगेन, ठीक है। बट इसमें एक ही चीज अननोन है, एक्स ए, राइट। तो एक्स से अननोन है तो सी ए, सॉरी, हाँ एक्स से आपको आराम से निकल आएगा बिकॉज एक ही चीज अननोन है। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, सो यू गेट एक्स इक्वल्स टू 296.14 mm, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल रिजॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, यू कैन वॉच द वीडियो एंड यू विल हैव टू ट्राई इट वंस योरसेल्फ, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कुछ नहीं है, बेसिक कैलकुलेशंस हैं, ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। तो एक्स से आ गया, तो आप सिंपली अब फिर क्या नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, आपको क्या निकालना है, बेसिकली आपको निकालना है एरिया ऑफ स्टील निकालना है, ठीक है। सो सिमिलर ट्राइंगल को आप सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है, तो आप सी ए तो आपको ऑलरेडी पता है, टी ए भी आप निकाल सकते हो, सिंपल इसी फॉर्मूले में रख देना आप लोग। एम पता है आपको, सी ए ऊपर से आ गया, सी ए सॉरी सी ए इज योर सिग्मा सी बी सी 7, ठीक है। तो 108.74 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि टी ए कितना है, 108, जबकि टी ए सॉरी जबकि सिग्मा एस टी होता कितना है मैक्सिमम, 230, राइट। तो उससे कम है यहाँ पर, तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि कौन सी कंडीशन आ रही है, ओवर इन्फो सेक्शन की कंडीशन आ रही है, तो ओवर इन्फो सेक्शन रहेगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्टील। आपका अल्टीमेट एम क्या है, एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला कहाँ पर आता है, टेंशन साइड वाले फॉर्मूले में आता है। तो आप कुछ मत कीजिए, आपको सिंपल बेंडिंग मोमेंट के इक्वेट कर देना है। बेंडिंग मोमेंट देखिए अभी 200 इंटू 10⁶ क्यों लिया है, 10⁶ से अब मैंने मल्टीप्लाई किया है बिकॉज इट वाज इन किलो न्यूटन मीटर, और मैं अब इसको चेंज कर रहा हूँ न्यूटन एमएम में, ठीक है, क्योंकि मैं सारी बाइक की डायमेंशंस में एमएम में रख रहा हूँ, और ये टीए वगैरह सब न्यूटन में है, ये देखिए। सो आई हैव टू इक्वेट विद द इक्वल यूनिट्स, राइट। मैं एक जगह किलो न्यूटन लूँ, एक जगह मीटर में लूँ, एमएम में लूँ, तो आंसर विल बी रॉन्ग। तो ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है, आपको सेम यूनिट में रखना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ स्टील आप यहाँ से सिंपल इस फॉर्म में निकाल सकते हो, नो इश्यूज। टी ए आपने यहाँ पर निकाल लिया 108, यहाँ पर पुट कर देना टी ए, ये आपको पता है, डी आपको पता है, एक्स ए आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है पहले से, तो ओनली अननोन थिंग इज एरिया ऑफ स्टील। सो एरिया ऑफ स्टील यू कैन फाइंड यूजिंग दिस इक्वेशन। कितना आ रहा है, 3336.3। देखिए उस वाले केस में हमारा 700 समथिंग आ रहा था, राइट, अंडर इन्फोर्समेंट में काफी कम आ रहा था। अब इसमें देखिए कितना ज्यादा आ रहा है, 3336 mm स्क्वायर, इतना ज्यादा एरिया ऑफ स्टील आ रहा है फॉर ओवर इन्फोर्स। तो देख लीजिए ओवर इन्फोर्समेंट में कितनी ज्यादा स्टील आपको यूज हो रहा है, ठीक है। और उसने आपसे लास्ट में क्वेश्चन ये भी पूछा था कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्टील फॉर अ बैलेंस सेक्शन, ठीक है, ये भी पूछा था आपने। एक अंडर इन्फोर्स का केस देख लिया, एक ओवर इन्फोर्समेंट का देख लिया। अब बैलेंस सेक्शन के लिए सीधे फॉर्मूला ये वाला पुट कर दीजिए, एम आर अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जे टाइम्स डी, ठीक है। तो बैलेंस सेक्शन का फॉर्मूला है, सिंपल, आपने एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हो आप इससे, सारी वैल्यूज आपको नोन है।
पुट करोगे तो कितना आ रहा है 98.25 mm स्क्वायर सी। तो वो आ रहा था 700 समथिंग अंडर एनफोर्समेंट में, और बैलेंस सेक्शन में आया 982, ठीक है, कुछ उससे थोड़ा सा ज्यादा, और ओवर एनफोर्समेंट में देखिए कितना ज्यादा आ गया 3306.3, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। सो अगर कहीं पे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट गिवन है और आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना है, सो यू हैव टू फॉलो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। पहले वाले में आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था पहले क्वेश्चन में, दूसरे में आपको लोड गिवन था, उसमें आपको स्ट्रेसेस निकालने थे, तीसरे क्वेश्चन में आपको बेंडिंग मोमेंट गिवन है और आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना है। सो बेसिकली these questions are revolving all around the same formulas, right? आपको बस डिफरेंट चीजें फाइंड करनी है, एरिया वो फॉर्मूला सब में सेम लग रहा है, कंसेप्ट इससे, ठीक है। So I request you all to just copy or note this question, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से इसको एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है, वरना मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में पहले, लेकिन आप लोग कल तक का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सो दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आगे बढ़ने से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लें। सो क्या है क्वेश्चन में, डिजाइन अ रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम फॉर अ लाइव लोड ऑफ 45 किलो न्यूटन मीटर। लाइव लोड आपको गिवन है, स्पैन गिवन है 7.5 मीटर, यूज M25 कंक्रीट एंड 415 स्टील, ये भी बता रखा है आपका। लोड इज एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट ऑफ बीम, तो सेल्फ वेट एक्सक्लूडिंग है, ठीक है। तो सेल्फ वेट एक्सक्लूडिंग है तो आपको सेल्फ वेट लेना पड़ेगा। सेल्फ वेट कैसे लेते हैं, एरिया, जो भी उसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया इनटू द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट दैट इज 25, तो वो आपका किलोमीटर पर मीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उससे निकाल लेना, और विड्थ आपको गिवन है 400 mm, तो इसको आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो आप ट्राई कीजिएगा, मैं फिर इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। आपको नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है, सो आई जस्ट So, do you have any questions or any issues regarding this lecture, today's lecture? No, sir. Okay, great.